Hello students, welcome to my channel ACCA at Modern Skills, where you will get practical and exam oriented ACCA coaching. So do subscribe my channel for exam related strategies. Also check out my channel playlist for all the practical subjects. So today's topic will be based on performance management, your complete exam guide. चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पेपर पैटर्न के बारे में। तो एग्जाम आपका होगा 3 आवर्स का प्लस 10 मिनट्स यू विल बी गेट एक्स्ट्रा रीडिंग टाइम, जहाँ पे आपको मेजरली 3 सेक्शन देखने को मिलेंगे। जनरली स्किल लेवल्स में आपको 3 सेक्शन देखने को मिलते हैं, जिसमें फर्स्ट सेक्शन इज सेक्शन ए which will cover 15 OTQs, 2 marks of each. So that will cover your 30 marks. Section B will be 3 OTK cases, जहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, MCQs, drag and drop, then fill in the blank. Like these questions may become they are also around 30 marks. Section C, which is a most important one. So आपको long question पूछे जाएंगे, constructive responses questions, 2 questions, 20 marks each, so that will cover your 40 marks, and how it's going to around 100 marks. तो आपको स्प्रेडशीट्स दी जाएंगी, स्प्रेडशीट्स बेस्ड कैलकुलेशन होंगे, एंड रिटन एक्सप्लेनेशन आपको देना होगा इन वर्ड प्रोसेसिंग एक्सेल टूल, वर्ड प्रोसेसिंग टूल या एक्सेल टूल। चलिए बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड टॉपिक वेटेज के बारे में। सो आपको यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग मेथड्स पूछी जा सकती है, लेट्स विल अराउंड 10 to 15 marks. Then budgeting and forecasting, it will around 15 to 20 marks. Standard costing and variance analysis is the most important chapter, 20 to 25 marks. Performance measurement and controls, it is again one more important chapter. It's the most important chapter of all. It will cover around 30 to 35%. And then decision making techniques will again be important one, so that will cover around 20 to 25%. So this is around your paper pattern and mark distributions. Now talks about the most tested areas, कि कौन कौन से areas है जहाँ पे आपको ज़्यादातर focus करना चाहिए. So based on the weightage, we have segregated few items. First of all is variance analysis. Second one is performance measurement, CVP analysis, limiting factor decisions, and budgetary control. So they are the mostly tested areas where you will get exact at least one minimum questions you will find in these chapters. चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, आज कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। सो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस में कम like variances, ROI, RI, EVA, CVP, forecasting. So these might be the questions you can come from numericals, जहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ सकता है। देन इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस, जहाँ पे आपका हाई स्कोरिंग एरिया यहाँ पे होगा। यू विल गेट कि आपको कैलकुलेशन तो समझ में आ गया, बट यू विल हैव टू इंटरप्रेट दैट कैलकुलेशन एंड एनालाइज दिस थिंग्स सिचुएशंस बेस्ड ऑन योर assumptions, and you have to return it in a long summary. तो आपको अपना ओपिनियन भी देना हो सकता है। सो दिस माइट बी द क्वेश्चंस, और वो बहुत ही हाई स्कोरिंग एरिया है। देन सिनेरियो बेस्ड एप्लीकेशंस भी हो सकते हैं, आपको कुछ सिनेरियो दे दिए जाएंगे एंड यू विल बी गेट टू नो अबाउट दी जस्टिफिकेशन मांगा जाएगा कि किस तरह से कैलकुलेशन होगा, और आपने कैलकुलेशन किया तो क्यों किया, किस वजह से किया, जस्टिफाई करो योर एप्लीकेशन को। तो ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। एंड रिटर्न थियरी में भी कैम फ्रॉम डायरेक्ट थियरी भी आ सकती है, बट देर इज लेस चांसेस कि आपको यहाँ पे रिटर्न थियरी देखने को मिल सकती है। मोर और लेस आपको इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस के क्वेश्चन बहुत ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं सिलेबस ओवरव्यू की। सो इट विल कवर कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एब्जॉर्प्शन एंड मार्जिनल कॉस्टिंग, एबीसी एनालिसिस, जो आपने ऑलरेडी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट में पढ़े होंगे इन दी योर नॉलेज लेवल एग्जाम। Then decision making techniques, CVP analysis, relevant costing, pricing strategies. This may be asked. This is your syllabus, included in syllabus. Then budgetary, drawing, ZBB, zero based budgeting,
flax budgets, behavioral issues. These are again one important one. Then standard costing and variance analysis, makes yield, planning and operational analysis. This may be the one of the most one important criteria that will be tested. Then performance measurements like ROI, RI, EVA, balance scorecard or KPIs. So these are the most important one. So it will be covered in your syllabus. So this is overall syllabus of your performance management chapter. चलिए बात करते हैं हाई स्कोरिंग एंड फोकस एरिया कि कहाँ आपको ज्यादातर फोकस करना है. जैसे मैंने पहले बताया कि वेटेज वाइज है तो वैरिएंस एनालिसिस विल बी मोस्टली टेस्टेड, देन परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड कंट्रोल विल बी टेस्टेड, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स आपको यूज करनी होगी एंड यू हैव टू डिसाइड ऑन सम फैक्टर्स जो आपको केस स्टडीज टाइप में दिए जाएंगे. तो आपको डिसाइड करना होगा कि वे एग्जैक्टली आपको डिसीजन क्या लेना है. कि ऐसा कोई सिनेरियो दिया है आपको कि कॉस्टिंग निकालो, कॉस्टिंग निकालने के बाद उसको आपको कॉस्टिंग को जस्टिफाई भी करना पड़ सकता है. तो दिस इज डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, जैसे प्राइसिंग डिसीजन है, देन कॉस्ट टू कॉस्ट डिसीजन है. तो क्या क्या डिसीजन आपको लेने पड़ सकते हैं, दैट यू विल बी गेट टू नो अबाउट द डिसीजन मेकिंग. Then budgetary controls and behavioral aspects that you need to learn. They are the most scoring and high scoring focus area है. चलिए बात करते हैं स्मार्ट टिप्स टू स्कोर हाई. सो अगर आपको हाई आपको मार्क्स कंफर्म करने हैं कि एटलीस्ट मुझे 60-70% मार्क्स चाहिए, सो यू नीड टू फोकस ऑन सम स्ट्रेटजीज. सो स्कोर 50 to 60% quickly in section A and B. So section A or B generally they are around 60 marks. So you can get exactly 50 marks, minimum 50 marks you can get from that. Section A and B, they will cover most of the cases में आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ MCQs and calculation questions होंगे. So calculation में भी आपको MCQs दिए जाएंगे, drag and drop होगा या fill in the blank questions होंगे. So that you will be tested and they are less मतलब क्या कह सकते हैं उसको, ज्यादा क्विक टाइम में आप इसको कवर कर सकते हो. मास्टर स्प्रेडशीट स्किल्स, definitely you have to be get to know about how Excel will work, because you have to tested, you will be tested in the examination itself कि आपको फॉर्मूलास यूज करने का, फॉर्मूलास आपको एक्सेल में ही करने होंगे. तो उसके लिए आपको स्प्रेडशीट्स को बहुत अच्छे से यूज करता आना चाहिए. एक्सप्लेन कैलकुलेशंस फॉर मेथड मार्क्स. ऑब्वियसली देखो आपको कभी कभी क्या होता है कि आपने एक्सप्लेनेशन तो दे दिया लेकिन आपका तरीका गलत है, कि आप ऐसा हो सकता है कि आपने क्वेश्चनिंग यानी कि कैलकुलेशन रॉन्ग किया, बट आपका जो एक्सप्लेन करने का तरीका है वो सही है, वो समझ में आया एग्जामिनर को, तो ही विल गिव यू द मेथड मार्क्स. एंड प्रैक्टिस ACCA CBE mock exams. Obviously you have to at least attempt 3 CBE mock tests before going for the final examination. लिंक आंसर्स टू सिनेरियो. देखो आपको एवरी टाइम ना कुछ सिनेरियो दिए जाएंगे कि ये है सिनेरियो, आपको आंसर देना है उसका. तो डायरेक्ट आंसर कहीं पे भी लिखना नहीं है. यू डोंट नीड टू जंप ऑन टू डायरेक्ट आंसर. First you will understand what the scenario is and link your answer to that based scenarios, so that will keep into eyes of the examiner कि ये इस बंदे ने अच्छे से उसको कनेक्ट किया है. your answer should be connected with the scenario. then टाइम अलोकेशन स्ट्रेटेजी आपको बनाई है कि एग्जैक्टली आपको टाइम किस तरह से अलोकेट करना है. मोर और लेस आपको 40 to 45 मिनट्स ना आपको स्पेंड करने हैं फॉर सेक्शन ए. एंड सेक्शन बी के लिए यू विल बी अगेन 45 to 50 मिनट्स आपको और देने हैं सेक्शन बी के लिए. सो दे आर मोर और लेस अराउंड 1.5 आवर. 1.5 आवर आप इस पे लोकेट कर सकते हो ए एंड बी. But section C will be more written and more longer questions may come. So you may assume around 80 to 85 minutes on these. But आखिर के 5 मिनट बचा के रखना just for the final review. So final review के लिए आपको ना at least 5 minutes का तो ब्रेक चाहिए. So you'll get to know exactly. So इस तरह से आपको स्ट्रेटेजी बना कि कौन से सेक्शन में हमें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है. चलिए आपको क्विक रिवीजन चेकलिस्ट दी गई है जस्ट फॉर क्विक रिवीजन की एग्जाम में जाने से पहले क्या किस तरह से हमें क्विकली रिवाइज करना चाहिए. variances is most important, mix yield and planning variances or operational variances. Then transfer pricing and divisional performance, they are most one. Throughput accounting, CVP analysis, relevant costing and limiting factors,
बैलेंस स्कोर कार्ड एंड बिहेवियरल एस्पेक्ट्स इन बजटिंग। सो इतने एरियाज है जो आपको क्विकली रिवाइज करनी चाहिए, एंड दे आर मोर हाई स्कोरिंग एरियाज। तो इन पे आपको क्विकेस्ट रिवीजन आना चाहिए, और वो क्विकेस्ट रिवीजन तब आएगा जब आप एग्जैक्टली इसी सभी टॉपिक्स को आप ले 2 से 3 या 4 बार आपने उसको रिवाइज किया होगा, तब जाके आप क्विक रिवीजन आप उसमें कर सकते हो। So thank you so much for watching these amazing and interesting videos. So do subscribe my channel for these kind of amazing and informative videos for you guys. Thank you so much.